Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Open your SST reading books. Page number है आपका 76. This is the lesson of 11, unit 3. Lesson 11, Muslim rule in the subcontinent. सबसे पहले हम इसकी reading और translation करेंगे. Arabs had been trading with the communities on the west coast of the subcontinent even before the coming of Islam. इस्लाम के पहुंचने से पहले अरब जो है वो बरे सग़ीर में तिजारत की गर्ज से आया जाया करते थे. In 570 CE, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca in Arabia. 570 CE में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए. In 610, he received the first divine message from Allah and declared the religion of Islam. 610 हिजरी में उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम मिला और उन्हें अल्लाह ताला की वही आनी शुरू हुई और उन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया. After many hardships and having to leave his town and move to another city now known as Medina, उन्हें इस सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. इवन उन्हें अपने शहर को छोड़ के मक्का को छोड़ के मदीना में हिजरत करनी पड़ी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम passed away in 632 CE. By then, Islam had spread throughout Arabia, and in the years that followed, it spread further into Africa, Asia, and the subcontinent, and even in parts of Europe. और उसके बाद इस्लाम जो है वो अरब के ज़रिए अरब से फैलता हुआ अफ्रीका, एशिया, बर सग़ीर से होता हुआ यूरोप के कुछ इलाकों में फैलना शुरू हो गया. In 712 CE, the governor of Iraq, Hajjaj, sent his troops with the young commander Muhammad bin Qasim to deal with Raja Dahir, the ruler of Dibal in Sindh. 712 में इराक़ के गवर्नर हज्जाज ने अपनी फ़ौजियों के साथ एक यंग कमांडर को एक नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को राजा ताहिर से बात करने के लिए भेजा जो कि सिंध में दीबल का हुक्मरान था. राजा ताहिर had been unable to control the pirates who had conquered ships carrying goods for the ruler of Iraq and Muslim pilgrims to Mecca. राजा ताहिर जो है उसके कज़ाकों ने उन मुसलमानों को रोक रखा था या उन्हें यरगमाल बना रखा था जो कि हज की गर्ज से मक्का जा रहे थे. मोहम्मद बिन कासिम not only defeated Raja Tahir but also conquered the lands from the Arabian Sea coast up to Multan in Lower Punjab. मोहम्मद बिन कासिम ने ना सिर्फ राजा ताहिर को शिकस्त दी बल्कि उसने बहुत से इलाकों पर फतह हासिल कर ली. He established a strong and just government with good reformers for the people. उसने वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई और वहाँ के लोगों के साथ अच्छा सलूक किया. As a result, many people willingly converted to the new religion. जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, इस्लाम के मज़हब को अपनाना शुरू कर दिया उन्होंने. This conquered territory became part of the Arab Empire for the next 200 years. और जो इलाके उसने फ़तह किए थे वहाँ पर अरब एम्पायर्स या अरबों की हुक्मरानी रही तकरीबन 200 साल तक. When the Arabs came to the subcontinent, they took many useful ideas from the Indians and spread them to other parts of the world. जब अरब्स बर सग़ीर में आए तो उन्होंने इंडियंस से बहुत से आइडियाज़ सीखे और जिनको पूरी दुनिया में फैलाया. The most important ideas that spread during this time were the digital numerals and the concept of zero. उन्होंने जो उस वक़्त मेन आइडियाज़ जो स्प्रेड किया जो फैलाया उनमें डिजिटल न्यूमरल्स और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था जो कि अहम था. This brought great change and development in mathematics and science, जिसके ज़रिए से साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई. By the end
By the 10th and 11th century, there was a mixture of peoples, languages, and cultures in the subcontinent. 11th 10th एंड 11th सेंचुरी के एंड तक यहाँ पर लोगों का, उनकी ज़बानों का और उनकी सकाफ़त का सब कॉन्टिनेंट में यानी कि बड़े सग़ीर में मिक्सचर थे, लोग मिले जुले लोग थे, उनकी ज़बानें थीं, उनका अपना कल्चर था जिनमें अरबिक, पर्शियन, टर्किश और इंडियन शामिल थे. By the end of the 11th century, Muslim rule was firmly established all over this area. लेकिन 11th century के आखिर तक यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी. Mahmud, the ruler of Ghazni in Afghanistan, was among the early Muslim invaders from the northwest. महमूद जो कि अफ़गानिस्तान में गज़नी का रूलर था, उसने यहाँ पर हमलावर हुआ. ही अटैक्ड इंडिया, उसने इंडिया पर अटैक किया मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, एंड डिस्ट्रॉयड अ फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ, और सोमनाथ के बुतों को तबाह व बर्बाद कर दिया. However, he did not set up his government in this region, लेकिन उसने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम नहीं की. But returned to Ghazni with the treasures he had captured, और बहुत से ख़जाने के साथ जो कि उसने वहाँ से लूटा था वापस गज़नी आ गया. महमूद रूल फ्रॉम 997 to 1030, और उसने 997 to 1030 तक वहाँ पर हुक्मरानी की. द दिल्ली सल्तनत, all of northern India up to Bengal, was conquered by the Afghan ruler of Ghor, Muhammad Ghori, in 1192. नॉर्दर्न इंडिया से लेकर बंगाल तक जो है अफ़गान हुक्मरान था महमूद गौरी, उसने 1192 में उसको फ़तह किया. ही मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, उसने अपनी ममलिकत का कैपिटल शहर दिल्ली को बनाया. गौरी वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग लाइन ऑफ मुस्लिम रूलर्स, वो मुसलमानों के बताए के तरीक़ों पर अमल करता था. द फर्स्ट ऑफ दीज was his general Qutbuddin Aibak, who formed the Delhi Sultanate in 1206. उसने वहाँ पर सबसे पहला जो जनरल बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 तक जो है हुक्मरानी की. Among its rulers were Al-Tutmish and his brilliant daughter Razia Sultana, और उसके रूलर्स में अल-तुतमिश और उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना भी शामिल हैं. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द दिल्ली किंग्स वाज बलबन, हु रूल्ड फ्राम 1246 to 1287. उसके बाद बलबन की हुकूमत आई जो कि 1246 से 1287 तक था. जिसने 1246 से 1287 तक वहाँ पर हुक्मरानी की. He was also a clever and capable general, and he saved the subcontinent from the attacks of the Mongols. वो एक ब्रिलियंट और बहुत चालाक जनरल था जिसने बहुत सी जगहों पर बड़े सग़ीर को मंगोलों के हमलों से बचाया. लेड बाय द फेमस चंगेज़ ख़ान, जिनमें चंगेज़ ख़ान जो है वो सबसे फेमस था, यानी कि चंगेज़ ख़ान के हमलों से उसने बचाया उसको. बलबन built strong forts along the routes and stationed his troops there to stop the Mongols from advancing. उसने पेशगी ही बलबन ने पेशगी ही जब उसे लगा कि मंगोल्स जो चंगेज़ ख़ान जो है वो हम पर हमलावर होगा, तो उसने पेशगी ही उन रूट्स पर बड़े बड़े किले बना दिए और उन रूट्स को सेव कर दिया, उन अपनी फ़ौजों को वहाँ पर खड़ा कर दिया. Towards the end of the 30th century, the Khiljis came to power. लेकिन 13th century के end तक खिलजीज़ पावर में आ चुके थे and ruled from 1290 to 1320, और जिन्होंने 1290 से 1320 तक वहाँ पर हुक्मरानी की. Their most well-known ruler was Alauddin. They were followed by the Tughlaqs 1321 to 98, the Sayyids 1414 to 51, and the Lodhis 1451 to 1526. और उनमें फेमस जो थे वो तुगलक, सैयद्स और लोधीस थे.